students, from today we will start the chapter number 9. This is also the history part and we will read in this chapter freedom movement and related events. जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उससे रिलेटेड कुछ हम इवेंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. There has been a contribution of numerous people, institutions and incidents in the national movements. The moderate leaders provided leadership in their own way in the initial period of the movement. Later on, the leadership was taken over by aggressive nationalists who, with their intense patriotism and sacrifice, gave direction and pace of the freedom movement. तो जो शुरुआत के जो वर्ष थे उसमें जो हमारे नेता थे, मॉडरेट लीडर्स थे, उनके हाथों में देश का नेतृत्व था और बाद में फिर वो नेतृत्व जो था वह जो लीडरशिप थी वह एग्रेसिव नेशनलिस्ट के हाथों में आ गई और फिर उन्होंने अपने तरीके से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किए. द मोस्ट इम्प्रूडेंट डिसीजन टेकन इन द रेजिमे ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. Bihar, Assam and Odisha were also included in Bengal those days. It was a major province of India. Lord Curzon was of the opinion that it was difficult to provide effective rule by only one lieutenant governor from the administrative points of view. In order to justify his view, he made a plan to divide Bengal into two parts. Actually, Lord Curzon, in the guise of partition, wanted to have a communal divide between Hindus and Muslims. There were many massive protests meeting held in the Bengal against this partition. Despite the massive protest, British government declared on 19th July 1905 the decision of partition of Bengal. तो जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया और बहुत ही उसका ये इम्प्रूडेंट अविवेकपूर्ण निर्णय था. और उस समय बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा ये सभी आते थे. तो वो इसने ये व्यू सबके सामने रखा कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इतना बड़ा जो एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें करना सही नहीं है और इसलिए वह विभाजन करना चाहता है. लेकिन एक्चुअली में वो क्या चाहता है, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में वह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहता था. इस पार्टीशन की बात जैसे ही सब लोगों को पता चली, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत सारी मीटिंग्स की और इसका विरोध किया. लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 9 जुलाई 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया. As soon as the news of partition of Bengal was received, people observed the day as a black day. People kept fast, marched on roads, observed strikes and demonstrated on roads while chanting Vande Mataram. Thus, partition of Bengal gave a new direction to the national movement and Swadeshi movement. जैसे ही लोगों को यह खबर मिली कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया है, लोगों ने उसे ब्लैक डे, काला दिन घोषित कर दिया और इसके बाद उन्होंने रोड पर मार्च निकाले, उन्होंने रैलीज की, उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने रोड पर वंदे मातरम का सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. तो इस तरह से बंगाल का जो पार्टीशन था उसने नेशनल मूवमेंट में और स्वदेशी मूवमेंट में एक नई दिशा दी. Now, Swadeshi movement. Nationalist leaders had two intention of using Swadeshi movement as a weapon to pressurize the British government. The supporters of Swadeshi were of the opinion that the interest of Indian and British government are mutually opposite. Both have the different views. The nationalist leaders and the supporters of Swadeshi have a different views. Where the supporters of Swadeshi will be required to sabotage the commercial interest of Britain if British government were to be forced to leave India. Swadeshi brigade believed that to curb poverty and stop the money flowing out of the country, manufacturing and use of more and more of Swadeshi goods is necessary. In order to execute their plan, nationalists started collecting capital to open up new industries like soap, cloth, etc.
etc. Gradually there were Swadeshi schools established and Swadeshi became a symbol of patriotism. तो स्वदेशी के जो समर्थक थे, सपोर्टर थे, वो ये कहते थे कि भारत और ब्रिटेन के जो हित हैं वो परस्पर विरोधी हैं, अपोजिट हैं, और इसलिए ब्रिटेन को भारत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके व्यापारिक हित जो है वो हमारे वो जो क्या कर रहा है हमारे व्यापारिक हितों पर आघात कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के जो व्यापारिक हित थे उनको हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि इस पर अटैक करना चाहिए। अब तो उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्लॉथ मिल्स हैं, सोप्स हैं, ये सारी चीज़ों का उन्होंने भारत में ही निर्माण इकट्ठा कर दिया और एक नेशनल बैंक भी स्टार्ट कर दिया जहाँ पर कि मनी को इकट्ठा करना वहाँ आरंभ कर दिया। तो इस तरह से एजुकेशन सेंटर भी खोल दिए गए, स्कूल्स भी खोल दिए गए और धीरे धीरे ये जो स्वदेशी का उपयोग था ये पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का प्रतीक बन गया। The aggressive leaders had a strong grip on Swadeshi movement. They came forward with new ideas, plans and thinking and put it before the people of India. They aimed at attaining political freedom through mass movements. The protesters not only boycotted British clothes but also shunned government schools, courts, titles and government jobs. अब जो लीडर्स थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पर उनकी अच्छी पकड़ हो चुकी थी और सिर्फ उन्होंने वो नए नए प्लान्स, आइडियाज़ लेकर के जनता के सामने रख रहे थे। सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं मांगी बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम का ही आइडिया नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जो भी बॉयकॉट में उन्होंने हर चीज़ को शामिल कर लिया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, कोर्ट हो, टाइटल्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हों, मतलब ये छोटे छोटे चीज़ों की को जलाने से, जैसे विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ उन्होंने इन सारी चीज़ों का भी बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। द वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्ट्रेटन द फीलिंग ऑफ स्वराज इन द इंडियन माइंड, और इस तरह से भारत के लोगों के दिमाग में अब पूर्ण जो स्वराज की जो धारणा थी वो शुरुआत हुई। अभी पूर्ण स्वराज नहीं, भी तो जो इस आंदोलन से जो व्यापकता फैली भारतीयों के मन में, अब यही भावना आ गई, यही फीलिंग आ गई कि अब हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, अब बहुत इम्पैक्ट भी हुआ, कोई क्या असर हुआ वो हम देखें। फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप्ड, पीपल डेवलप्ड रिस्पेक्ट फॉर स्वदेशी गुड्स, द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस डेवलप्ड, देयर वर मेजर चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, cultural consciousness developed due to partition of Bengal. Subsequent to the partition of Bengal, British started dividing Indians on the line of communal differences. On the suggestion of British government, Indian Muslim League was formed. जो स्वदेशी आंदोलन था उसका बहुत प्रभाव पड़ा, जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके कारण राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। इसके साथ साथ स्वदेशी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ गया। बंगाल विभाजन के कारण लोगों के मन में सेल्फ रिलायंस की भावना का डेवलपमेंट हुआ। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत चेंजेस आ गए और जो हमारे कल्चरल डेवलपमेंट था वो भी हुआ। बंगाल पार्टीशन के साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक सफल भी है। उन्हीं की सलाह पर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। The 6 long years of Curzon's tenure in India changed the direction of freedom movement in India. कर्जन के 6 साल के कार्यकाल में स्वाधीनता आंदोलन जो था हमारा, उसकी जो डायरेक्शन थी वो वास्तविक रूप में बहुत बदल गई। स्वदेशी मूवमेंट वॉज द फर्स्ट फोर्सफुल नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनाइलिज्म, और जो स्वदेशी मूवमेंट था वो राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई चेतना का विकास भी हुआ। और स्वदेशी जो आंदोलन था वह उपनिवेशवाद मीन्स कॉलोनाइलिज्म का पहला हथियार साबित हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। We will read about the Surat split in the next video.